Alright, so hi friends, this is Dr. Kashish Grover, your PSM faculty. So guys, and now I will be talking about recall, FMGE recall. So I'm talking about PSM, right? Guys, one thing which I am able to make from this paper, and if you are the one who is preparing for the June exam, if you are the one who is preparing for, if you are in a final year, or in short, you are planning to appear for FMG exam in future or NEET PG exam in future, I always say this point in my classes. Be it FMG class, be it my NEET PG class, I say one thing. If anything which is important, which came today in NEET exam, is important for your FMG exam. Anything which came to FMG exam, especially I am talking about PSM only. I am only talking about PSM. If something which is coming this year in FMG will high chance that it will be there in NEET. And there are many questions which are as it is. They picked from NEET 24, which happened in August, right? So this is one take home message. And second point, they also repeat the topics, FMG topics. Now, without any delay, let's start. First chapter, concept of health and disease. This question, guys, FMG exam is incomplete without topic level of prevention. So classically, in fact 2 years back, in one FMG exam, 2 questions from this topic came. So this year also this happened. One question. So the history is saying, and I was very glad when I came to know, when after exam I was speaking to my students and they were like, sir, secondary. Yes, the answer is secondary. Yes, the answer is secondary. Guys, here, father of Mr. X was having colon cancer. Now he is worried about himself. This Mr. X is worried about himself, so he went through a screening. Screening of disease is always secondary. Screening of disease is always secondary, right? Okay, I'm changing the question. Suppose this screening, it is not there, and now I'm changing the question. Father of Mr. X died because of colon cancer. Now we have advised Mr. X to have a high fiber diet, to take care of diet, to have high fiber diet, to don't have which level of prevention is this now? Anyone? I'm waiting in chat box. So now it will be primary, because now it will be primary. Now coming to epidemiology, a group of 60 patients, 12 cases died. Calculate case fatality rate. So what is case fatality rate? Number of deaths divided by number of deaths divided by total number of cases into 100.
So 12 divided by 60 into 100. 12 divided by 60 into 100. Right? So answer will be 20%. शुभम सर मौज कर दी पीएसएम ने पेपर में. आई एम वेरी हैप्पी टू. शुभम मैं आपकी ये बात सुन के बहुत खुश हो रहा हूँ इस वक्त. आप जान नहीं सकते है ना, बिकॉज नो डाउट शुभम, जो मुझे बच्चों से बात करके पता चला कि थोड़ा पहला पेपर टफ आया था, है ना. थोड़ा बच्चों ने मुझे बताया कि सर पहला पेपर हमें टफ लगा, बट हाँ जब आपने बोली ये बात कि सर पीएसएम ने मौज कर दी, आई फील रिलीव्ड, है ना. मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है ना. गुड बेटा शुभम. आई प्रे टू गॉड कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, है ना. चलो नाउ 75 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 80% देवर इम्यूनाइज्ड. They were immunized with measles vaccine. One of the students developed fever with rash, and following exposure to him, 12 children more were affected. 12 children more were affected. Now, so in this case, 75 students are there and 80% are immunized. So 80% of 70 is 60. So basically 60 students are immunized. Now what is the formula for secondary attack rate? Secondary attack rate is number of secondary cases divided by number of susceptible. Number of susceptible into 100. So in this case 60 are already immunized. How many left? So total 75 minus 60, 15. Now total 15 are susceptible, and out of 15 one is already having the disease. So total susceptible are 14. Out of 14, 12 develop the disease. So answer will be somewhere will be 85%. So a study which started in 2012 recruited smokers and non-smokers. In 2022 they checked who all have developed coronary heart disease, coronary artery disease. किसको coronary artery disease हुआ. So what they are doing in 2012, they have smokers, they have non-smokers, they have followed. So basically this is a prospective cohort. So the answer here is prospective cohort. Now coming to biostats. In a normal distribution, mean 82, standard deviation 1.5. So for 95% population, mean plus minus 2 standard deviation, 82 plus minus 1.5. So the answer will be 79 to 85. Communicable diseases. Yes, some questions, some topics were new, and majority of the questions they were discussed, and they were indirect questions. In my class also I told you, do not expect they will ask you the definition of MMR. Do expect they will ask you case scenario where they will use your knowledge to analyze and get the answer. Similarly here also this happened. In this case they did not ask you the secondary attack rate definition, but they used your analytical mind. For me this is very a good level question, है ना ये बहुत. But this was discussed, है ना, this was discussed. Yes शुभम, maximum. शुभम सर पूरा पेपर था नोट्स से. यस बच्चे, हमने नोट्स में डिस्कस किया था हमने क्लास में, बट हाँ पेपर कंसेप्चुअल था. दिस वी ऑल्सो डिस्कस्ड सेकेंडरी अटैक रेट को कैसे निकालेंगे. नाउ biostats, communicable diseases. Which vaccine is contraindicated in pregnancy? I told you, varicella. Strain क्या है? ओका.
ओका स्ट्रेन, ठीक है, ओका स्ट्रेन है वेरिसेल्ला का, ये लाइव अटेन्यूएटेड है, मैंने आपको बताया था दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. This given image we have already discussed. NLEP, this is sapna, this is sapna. And in my class also I told you that this is a NEET PG 24 question, है ना, this is NEET PG 24 question as it is repeat from NEET PG 24. Now in this case there is a dog bite. So when there is a dog bite and in this case we are going to give immunoglobulin plus vaccine plus wound management because it is a category 3. Now healthcare system, I told you, and बच्चों ये जो टॉपिक है ना लास्ट टू लास्ट ईयर FMG में अर्बन हेल्थ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था कि कौन सा अर्बन हेल्थ का पार्ट नहीं है, है ना. मैंने आपको बोला था क्लास में, ऊषा अगर सिंगल आंसर पूछा है तो एक ऊषा चाहिए अर्बन आशा 2000 की पॉपुलेशन पे, दिस इज सिंगल बेस्ट आंसर एंड रेंज इज 1500 से 2500. ना शुभम, नहीं 1500 से 2500 बेटर आंसर है. बहुत क्लोज है, मैं मानता हूँ बहुत क्लोज है 2000 से 2500, बट अगर रेंज पूछी है तो 1500 से 2500 मार्क करेंगे. अगर सिंगल पूछा है, मान लो शुभम ऐसा दिया बच्चे उन्होंने, मान लो ये दिया ऑप्शन में, है ना, ये ऑप्शन है, चलो 5 ऑप्शन मान लेते हैं. अब सपोज बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, 5 ऑप्शन दिए हैं, अब बोला एक बेस्ट चूज करो. अब बोला एक बेस्ट चूज करना है तो जो हमारी गाइडलाइन है, रीसेंट गाइडलाइन है जो 2022 में आई थी, उसने बहुत साफ साफ लिखा है एक आशा रूरल एरिया में 1000 की पॉपुलेशन में एक चाहिए, अर्बन की पॉपुलेशन में जो अर्बन एरिया है वहां 2000 पे एक ऊषा लगेगी. ठीक है. नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. बहुत बच्चों को लगा कि MOHFW है, नहीं बेटा MOHFW नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. बेटा ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड एडल्ट्रेंट. सो फ्लोरोसिस जो है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लोरीन हाई हो गया, फ्लोरीन हाई हो गया. क्या ऑप्शन था बेटा राव साहब? अगर 1000 से 2500 था तो 1000 से 2500 भी मार्क कर सकते हैं. बेटा IPV वैक्सीन हमने डिस्कस किया है, इसका निमोनिक पोरिप है ना, तो ये 6 पे देते हैं, 14 पे देते हैं, 9 मंथ्स पे देते हैं. C is the correct answer here. बच्चों एक उन्होंने नेशनल डीवर्मिंग डे पर क्वेश्चन पूछा था. नेशनल डीवर्मिंग डे ट्वाइस अ ईयर मनाया जाता है. 10th Feb and 10th August, है ना, 10th Feb and 10th August. If you remember in class I also told you टैडी मत देना, एल्बेंडा देना, है ना, ये हमने एक गुड. बच्चों एक ये मुझे कुछ बच्चों ने बताया, एक ऐसी इमेज दी हुई थी, एक हिस्ट्री दी हुई थी. इसमें मैं डाउटफुल इसलिए कि कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर ये नहीं था, है ना. इफ यू रिमेंबर इन क्लास मैंने आपको बताया था
कि अगर पेरी ऑरिफिसल मिलेगा, अगर पेरी ऑरिफिसल डर्मेटाइटिस होगा, देखो बेटा डर्मेटाइटिस होगा, डायरिया होगा। ओके, शुभम इज सेइंग फर्स्ट नहीं थी, सेकंड इमेज थी। राइट, मेडिसिन शॉट्स अगस्त एंड सितंबर ओनली लिखा है, अगस्त एंड सितंबर ना बेटा, सितंबर तो होता नहीं है। नाउ सो इन दिस केस ये बनता है हमारा जिंक डेफिशिएंसी, ये बनेगा जिंक डेफिशिएंसी। ओके डॉक्टर मनोज सेकंड फोटो था, हाँ जी बच्चे सेकंड फोटो था, ठीक है। जिंक ऑप्शन में था ना, जिंक डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी था ना। नाउ बेटा एक क्वेश्चन आया था नेटवर्क एनालिसिस का। देखो नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ भी अगर हमें करना है ना। अब देखो नेटवर्क एनालिसिस पे क्वेश्चन था, रोहित बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन रिकॉल बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन रिकॉल। रोहित मेरी बात समझ बेटा, तुमने बताया कि सर इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन लग रहा था, अब मेरी बात को समझना रोहित, है ना बेटा। है ना रोहित, मेरी बात समझ बेटा। तुमने कुछ बताया है ना, किसी और बच्चे को लगा नहीं ये नहीं आया था, तो इस वजह से रिकॉल जो होता है ना, रिकॉल कभी भी एग्जैक्ट 100%, है ना। जो दो बच्चे पेपर दे के आते हैं ना, वो भी कभी कभी एग्जाम में सोचते हैं नहीं ये था ये नहीं था, है ना बच्चे। मनोज फेब नहीं था, फेब होगा बेटा, 10 फेब को ही मनाया जाता है नेशनल डिवॉर्मिंग डे। मनोज इज सेइंग नेशनल डिवॉर्मिंग डे में फेब ऑप्शन में नहीं था। हाँ जी बच्चों, इज दैट ट्रू? चलो नेटवर्क एनालिसिस में जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जो सबसे ज्यादा, देखो अभी तक ना ये एक लाइन आती थी, द लॉन्गेस्ट पाथ इन नेटवर्क एनालिसिस इज सीपीएम। अब उन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया और पूछा सीपीएम इसमें क्या होगा, राइट। लो शुभम कह रहा है, सौरभ, शुभम इज सेइंग फेब था बेटा, यस फेब था बिकॉज इट इज 10th फेब, राइट। चलो ऑल राइट डन। हाँ जी, एक क्वेश्चन था लार्वा के ऊपर, ये लार्वा है, एक ये था और एक लार्वा था ये। बेटा हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो सिफॉन ट्यूब होती है, जो सिफॉन ट्यूब होती है वो एनोफिलीज में नहीं होती, क्योंकि एनोफिलिस पानी के ऊपर पड़ा हुआ है। सो जो ए लार्वा है ये एनोफिलीज है, और जो ये बी लार्वा है ये किसका है, ये दूसरा क्यूलेक्स। चलो कोई नहीं, शुभम रोहित बेटा जो एग्जाम हो गया गया, चल मारो, डोंट वरी। एग्जाम के एक एक ऑप्शन को रिकॉल करके एनालाइज मत करो, ओवरथिंक मत करो, परेशान मत हो। यस कबीर बच्चे, ये ए जो है एनोफिलिस और ये दूसरा क्या होगा, क्यूलेक्स।
शुभम बेटा मार्च में नहीं होता, मार्च में नेशनल डीवर्मिंग डे नहीं मनाया जाता, स्टैंडर्ड है 10 अगस्त को मनाएंगे और 10 फेब को मनाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूजुअली इसी दिन ही जो एमडीए देते हैं हम फाइलेरियासिस के लिए वो भी दिया जाता। ठीक है, चलो गुड, ओके बच्चों, राइट, चलो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। नाउ रिलैक्स, रिजल्ट तक रिलैक्स करो, है ना, डोंट वरी, रिलैक्स करो, घूमने जाना है घूमने जाओ, है ना, रिलैक्स करो। ऑलराइट बेटा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।